Good morning, students. Today we will do miscellaneous exercise of probability. The first question of the exercise is, if A and B are two events such that probability of A is not 0, find probability of B given A if A is a subset of B. And in second part, if A intersection B is 5. Now we know that the conditional probability of B given A, it is equal to probability B intersection A divided by probability A, and B intersection A means A intersection B. And here A is a subset of B. When A is a subset of B, A intersection B will be equal to set A, so it can be replaced by PA, so it becomes PA divided by PA, that is 1. In the second case, A intersection B is 5, it means probability of A intersection B is 0. So the conditional probability of B given A will be equal to 0 divided by probability of A, that is 0. Next one. This is an important question. It has been asked in the board examination many times. Suppose that 5% of men and 0.25% of women have grey hair. 5% मैन और 0.25% वोमेन के ग्रे हेयर्स हैं. A grey haired person is selected at random. It is given that a grey haired person is selected. We have to find the probability of this person being a male. एक जो ग्रे हेयर्ड पर्सन हमने सेलेक्ट करा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक मेल हो. Assuming that there are equal number of males and females. तो ये हमें गिवन था कि ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड, और क्योंकि पर्सन आपका जो सिलेक्ट हो रहा है वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, तो हमारे पास दो इवेंट्स पॉसिबल हैं यहाँ पर कि E1 इज सेलेक्टेड पर्सन इज मेल एंड E2 इज सेलेक्टेड पर्सन इज फीमेल, एंड दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. क्योंकि जब आप पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, और या तो E1 होगा या E2 होगा, दोनों एक साथ नहीं पॉसिबल है, तो एक्सक्लूसिव भी हो गई. और क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स हैं यहाँ पर, तो E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी बोथ आर इक्वल टू हाफ. नाउ whatever is given, let us denote that event by A. So A event is selected person is gray haired. Now we want to find the probability of E1 given A. So for that we require probability A given E1. A given E1 means जब आपने एक मेल सेलेक्ट करा तो उसकी ग्रे हेयर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो मैन के ग्रे हेयर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, सो इट बिकम्स 5/100, 1/20. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 का मतलब क्या हुआ कि एक फीमेल अगर आपने सिलेक्ट करी है तो उसके ग्रे हेयर्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज गिवन 0.25%, मीन्स 0.25 डिवाइडेड बाई 100, that is 25 by 10,000, so it becomes 1/400. Now probability of E1 given A is given by Bayes theorem as probability E1 into probability A given E1 divided by probability E1 into probability A given E1 plus probability E2 into probability A given E2. Probability E1 is 1/2 and A given E1 is 1/20. Similarly, in the denominator, probability E2 is 1/2 and A given E2 is 1/400. After doing the calculation, we will get 20/21. Next one, this is also an important question. Assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%.
एक पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस 40% है, लेकिन अगर वो मेडिटेशन और योगा करता है तो हार्ट अटैक के चांसेस 30% और 30% रिड्यूस हो जाएगा। एंड इफ he is using certain drug, it reduces the chances by 25%. At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities. इन दोनों ऑप्शंस में से मेडिटेशन योगा और ड्रग्स में से वो एक ऑप्शन चूज कर सकता है, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है चूज करने की। It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. ये हमें दिया है कि इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एक जो पेशेंट हमने सेलेक्ट करा है उसे हार्ट अटैक हो जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो इसके क्या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि उसने मेडिटेशन एंड योगा वाले कोर्स को फॉलो किया हो। तो यहाँ पर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, तो एक इवेंट E1 हम इसी को मान लेंगे। E1 इज द पेशेंट फॉलोज मेडिटेशन एंड योगा। दूसरा क्या हमारे पास ऑप्शन था कि पेशेंट follows prescription of certain drugs. So E2 is this. अब दोनों में से एक ही चूज कर सकता है, दोनों इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं। और वट एवर इज गिवन, द गिवन इज द पेशेंट सिलेक्टेड सफर्स अ हार्ट अटैक, दैट इज सपोज लेट इवेंट ए। यहाँ पर क्योंकि दोनों ऑप्शंस के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटीज थी चूज करने की, इसीलिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। नाउ प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 मीन्स अगर पर्सन मेडिटेशन और योगा फॉलो करता है तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस क्या होंगे। इनिशियली 40% थी प्रोबेबिलिटी, 40/100, लेकिन 30% और रिड्यूस हो गया। सो 30% किससे रिड्यूस हुआ, ऑफ 40/100 का। सो इट बिकम्स 28/100। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 क्या है कि अगर वो कुछ प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग को फॉलो करता है तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस क्या है। तो इस केस में 25% रिड्यूस हो रहा था। सो नाउ द प्रोबेबिलिटी विल बी 40/100 minus 25% of 40/100, that is 25/100 into 40/100। अब हमें निकालना क्या है कि जिस पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा हो उसने मेडिटेशन और योगा फॉलो करा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। तो बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, PE1 into PA given E1 divided by PE1 PA given E1 plus PE2 into PA given E2। वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो 14/29 आ गया। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया है कई बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैग 1 contains 3 red and 4 black balls and bag 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2. एक बैग फर्स्ट में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं और बैग 2 में 4 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। बैग 1 से बैग 2 में एक बॉल ट्रांसफ़र करी और फिर उसके बाद बैग 2 से एक बॉल ड्रॉ करी, और वो बॉल जो बैग 2 से निकाली है दैट इज़ रेड इन कलर। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्रांसफ़र करी थी हमने बॉल वो ब्लैक कलर की हो। अब यहाँ पर क्योंकि बैग 1 में रेड और ब्लैक दो ही तरह की बॉल्स हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्रांसफर बॉल इज़ रेड और ट्रांसफर बॉल इज़ ब्लैक। So let us denote them by E1 event and E2 event. What is given कि the ball drawn from bag 2 is red. So let us denote by event A. Now the probability that the red ball is transferred from bag 1 to bag 2 will be equal to
3 रेड बॉल्स थी, तो 3 में से कोई भी ट्रांसफ़र हो सकती है, और टोटल कितनी है 7. सो द probability of E1 is 3/7, and probability of E2 is probability of transfer of black ball, 4 थी black ball, so it is 4/7. अब यहाँ देखिए आप, ये बैग 1 है हमारा, ये बैग 2 है. अगर आप रेड बॉल ट्रांसफ़र करेंगे इसमें, तो अब इसमें 5 रेड और 5 ब्लैक हो जाएंगे. अगर आप ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे. नाउ प्रॉबिलिटी ए गिवन E1 का मतलब क्या होगा कि जब आपने रेड बॉल ट्रांसफ़र करी है तो इसमें से रेड बॉल को निकालने की प्रॉबिलिटी क्या होगी. तो जब आप रेड बॉल ट्रांसफ़र करिए तो आपके पास अब 5 रेड और 5 ब्लैक हैं, इसीलिए रेड बॉल को विड्रॉ करने की प्रॉबिलिटी क्या होगी 5/10. प्रॉबिलिटी ए गिवन E2 का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके बाद बैक 2 से रेड बॉल निकालने की प्रॉबिलिटी क्या होगी. तो उस केस में आपके पास ये बॉल्स हैं, तो रेड बॉल निकालने की प्रॉबिलिटी क्या होगी इस केस में 4/10. So 5/10 and 4/10. Now we have to find probability of E2 given A. So it is equal to probability E2 into probability A given E2 divided by probability E1 into probability A given E1 plus probability E2 into probability A given E2. सबकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन कर लेंगे. 16/31 आंसर आएगा. So that's all for today. Now you can do these questions. Thank you.